में हो। आजकल हम सब चीज को एक यूनिफॉर्मिटी में लाना चाहते हैं। इंडिया इज वेरी यूनिक कंट्री। इंडिया में आप यूनिफॉर्मिटी इतने आसानी से नहीं ला सकते। मैं जानता हूं कि बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक बात है कि हमें सब इसको मान के चलना पड़ेगा कि हिंदुस्तान एक झटके में नहीं आया। बहुत लोगों ने संघर्ष किया, किसी ने गोवा में किया, किसी मणिपुर में किया, त्रिपुरा में किया, कश्मीर में किया, हैदराबाद में किया। तो आप हाउ डू यू सी इंडिया इन 2047? देयर आर मेनी inaccuracies as well. Let me start. The earlier speaker spoke about education. आपने शिक्षा के बारे में बात की। मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा बात बताना चाहता हूँ, because I think this room is filled with North East because most of my Tikra Matha MLAs are here. मेरे राज्य में त्रिपुरा में हमने सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2006-2007 में आजादी के 60 इयर्स के बाद एक राज्य को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला। इससे पहले हमें कहीं और जाना पड़ता था अगर आपको क्वालिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको शिक्षा चाहिए थी। देन यू विल हैव टू ट्रैवल टू मेघालय or maybe to Assam or maybe to Delhi or Bombay, Mumbai. But in your own state, we do not have a central university. We talk about India at 2047 and यहाँ मैं आज मुंबई में आया हूँ। मैंने सुना एक दो विधायक बात कर रहे थे कि नाउ वी आर डूइंग डीएनए टेस्टिंग। मैं तो अनुसूचित जनजाति हूँ, बहुत लोग अनपढ़ गवार भी बोलते हैं। मेरे खुद के कजन ब्रदर्स लोग मुझे जो दिल्ली में हैं, जयपुर में हैं, they often consider me a lesser royal, because we are from the northeast. मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। यहाँ के लोग, मैं आज सुन रहा था, they were talking about DNA, they were talking about cancer research, stem cell research. मेरी यहाँ में एक विधायिका है, she comes from Gandatwisa and Dhalai. People still die of meningitis, diarrhea and malaria. So you can't talk about India by ignoring a certain part of India. मैं आपको बोलता हूँ how I see India in 2047. Many people measure India by GDP. Many people in this country measure India by G20. Many people in this country measure India by our image abroad. I measure my India, and I'm going to keep it to maybe 8 minutes, 1 minute extra I will ask, I'll speak. I see my idea of India if my community, which is only 8 to 10 lakhs, 12 lakhs, can be around in 2047, speaking our own language, wearing our own clothes, and surviving in a 1.8 billion or 2 billion population. The real India I see, अगर हिंदुस्तान को एक रहना है, हिंदुस्तान को उन्नति करनी है, तो हिंदुस्तान के छोटे से छोटे संप्रदाय को, कोई भी धर्म हो उनको 2047 में रेलिवेंट रहना पड़ेगा। अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं रहेगी तो हिंदुस्तान क्या है, भारत क्या है? विश्व में सब आपको ताली मारेंगे, आपके लिए ताली मारेंगे, लेकिन अगर एक नॉर्थ ईस्ट का एक क्षेत्र से अगर हम बचेंगे नहीं, हमारा वस्त्र नहीं रहेगा, हमारा भाषा नहीं रहेगा, हमारा आइडेंटिटी नहीं रहेगा, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, तो ये कौन सा भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं? बहुत लोग, मैं भी उस समय जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन हमारा जो संप्रदाय है, हमारा जो जनजाति है, हमारा जो ट्राइबल है, जो इंडिजिनस है, वो 2047 में सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा? Sir, you spoke about electoral reforms. Let me tell you, the biggest problem in this country, according to me, is we talk about हम दो हमारे दो, लेकिन in India, population is the only thing which makes you win elections. Today, I don't know if somebody is from Uttar Pradesh, but Uttar Pradesh decides what 30% of India is going to decide. So we who come from Northeast, Sikkim,
Mizoram, Tripura, Nagaland, Meghalaya. What say do we have in this Indian democracy? Is this country based on population? Are you going to reward population and not diversity? But what I see is that if India has to prosper in 2047, you'll have to change the democracy, as we say. We are supposed to be grateful for the great democracy. The great democracy these days only rewards numbers. Empathy has gone out. Jingoism and rhetoric has come in. So I think for us to survive in 2047, we will need to look after. When we talk about minority today, we talk about religion, but minority are also ethnicities. I speak for my region. I don't speak for the rest of the country. I think we should all speak for a region. हम लोग सबको अपने क्षेत्र के बारे में बात करना चाहिए. बहुत बार मैं जाता हूं और मैं सुनता हूं कि आपका तो छोटा राज्य है, आप तो बहुत कम है. जमीन, इमोशन और देश सिर्फ नंबर से नहीं बनता है, जुड़ने से बनता है. If India has to prosper in 2047, we'll have to think for a new economic policy. We'll have to think about climate change because we are not living in an insulated world. We have to think about unlearning what we have learned in the last 60 years. I'm not saying unlearning after 2014. I'm talking about unlearning throughout, because there are many things that we have to learn. And politically, we are, some of यहाँ में तो आप लोग legislators हैं, leaders हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मुझसे त्रिपुरा से ज़्यादा नहीं जानते. जैसे कि मैं भी, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है. इमोशन सबका एक होता है. मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान को 2047 में रेलेवेंट बनना है तो हमें अपने क्षेत्र को छोड़ के भी जाकर दूसरे क्षेत्र में जाकर देखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने देश को ही नहीं समझेंगे हम बाहर जाकर क्या बात करें. I think it is very important for us as legislators, as lawmakers, to travel and understand. Not go on a junket tour, but go and understand. And I know there are some leaders here who have traveled the nook and corner of this country, and I see them in the room. We may be politically in opposite camps, but I do appreciate that. We have to learn to appreciate even the best qualities in our opponents. And a great India in 2047 will only be possible if we are all humble. ये देश को humble रहना पड़ेगा. जो देश के अंदर अहंकार आ जाता है, वो देश अपने ही लोगों को सबसे पहले छोड़ता है. फाइनली मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया. मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप भी इस सेशन के बाद हमसे बात करें. हम भी आपसे सवाल पूछिए, आप भी सवाल पूछिए, लेकिन हॉस्टिलिटी नहीं होना चाहिए. आजकल 9 बजे के टीवी चैनल्स में मैं देखता हूँ हर जगह में इंडिया पाकिस्तान लाइन ऑफ वॉर. ये इतना इस देश में इतना, why is there so much of anger? Why are we so upset? क्योंकि they are paid for it. Yes. त्यागी जी तो सब जानते हैं. ये गुस्सा को भी हमें त्यागना पड़ेगा त्यागी जी. और जिस दिन ये कब तक ये चलेगा, ये कब तक ये चलेगा, और जब तक ये चलेगा इस मुद्दे में कोई बात नहीं करेगा. हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आप उसको कुछ भी कहे, ये किसी एक व्यक्ति का जागीरदारी नहीं है, ये हम सब की विरासत है. एंड दैट विरासत हैज टू बी मेंटेन्ड थ्रू कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, ह्यूमिलिटी एंड यूनिटी. बेलाई बेलाई नो हम भाई. थैंक यू. Thank you so much, Pradyut, for that very articulative speech and also underlining the importance of diversity and identity. Thank you. I would like to request Shri Sanjay Nirupamji, former
President Mumbai Regional Congress Committee and former member of Parliament of Lok Sabha, Sanjay ji. Former member of Shiv Sena. सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले इस प्रयास को, इस कोशिश को मैं सलाम करता हूं, जिसके तहत MIT ने पूरे हिंदुस्तान के सभी विधायकों को बुलाने का एक आठवले जी पसंद आमचे शेरो शायरी नहीं होगी इनकी। आमचे केंद्र शासनाचे मंत्री आणि महाराष्ट्राचे मोठे नेते RBIचे प्रमुख आठवले साहेब इकडे आलेले आहेत, त्यांच्या स्वागत आहे। तो इस प्रयास को मैं सलाम कर रहा हूं।